Dear children, welcome to all of you in English class. Hope that all of you are well at your home. Dear children, today we will solve the exercise 2 of chapter 5, that is quality of your book Honeycomb. Dear children, as you know that we had solved the exercise 1 of this chapter in previous lecture. We solved the questions of working with the text. Today we will solve the questions of the working with language, which is written at page number 78 and 79 of your book. Let's start. The question number 1 is, study the following phrases and their meaning. Use them appropriately to complete the sentences that follow. So dear children, let's know the phrase first. The first phrase is look after. Meaning of this first phrase is take care of. Another phrase is look down on. It means disapprove or regard as inferior. Another one is look in. It means make a short visit. Now the fourth phrase is look into. It means investigate. Fifth one is look out. It means be careful. Now the dear children, another one, look up. It means improve. Similarly, look up to. It means admire. And now dear children, we use these phrases in different sentences. Let's start. First sentence is, after a very long spell of heat, the weather is looking up at last. Means improve at last. Similarly, another sentence, we have no right to look down on people who do small jobs. Means disapprove people who do small jobs. Now third sentence is, Nitin has always looked up to his uncle who is a self-made man. Means admire his uncle who is a self-made man. Now fourth sentence is, the police are looking into the matter thoroughly. Means investigate the matter thoroughly. Fifth one is, if you want to go out, I will look after the children for you. Means take care of the children for you. Now sixth sentence is, I promise to look in on your brother when I visit Lucknow next. Means make a short visit on your brother when I visit Lucknow next. Now the seventh sentence is, look out when you are crossing the main road. Means be careful when you are crossing the main road. So dear children, we use the phrases in different sentences which have different meaning. Now go to question number 2. The question number 2 is, read the following sets of words loudly and clearly. प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उन्हें जोर से बोलना है और क्लियर बोलना है और उसके अर्थ को समझना है, क्योंकि बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है परंतु उनका मीनिंग डिफरेंट होता है. ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ शब्द दिए गए हैं. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वर्ड इज कोट. मीन्स जो फर्स्ट वर्ड जो है कोट है उसका अर्थ होता है घाव, और जो राइट साइड में दिया गया है उसका अर्थ होता है लेप लगाना. बच्चों इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि ए अल्फ़ाबेट लग गया है बीच में, परंतु प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है. इसी प्रकार सेकंड वर्ड इज कोस्ट. कोस्ट मीन्स आप भी जानते हैं कीमत, और दूसरे का अर्थ होता है समुद्र तट. थर्ड वन इज टोस्ट. टोस्ट मीन्स उछालना, और दूसरे शब्द का अर्थ होता है डबल रोटी का सेका हुआ टुकड़ा. नाउ अनदर वर्ड इज गॉट. एक का अर्थ होता है पाना, दूसरे का अर्थ होता है बकरी. सिमिलरली रोट. एक का अर्थ होता है सड़ा हुआ, दूसरे का अर्थ होता है रटना. नाउ अनदर वन इज ब्लॉट. ब्लॉट मतलब दाग, और BLOAT इसका मतलब होता है फूलना. इसी प्रकार नोट मीन्स जो फर्स्ट वर्ड है नोट, KNOT, इसका अर्थ होता है डोरी या रस्सी की गांठ, और जो NOTE है इसका अर्थ होता है संक्षिप्त विवरण या किसी बात का उल्लेख करना. नाउ डियर चिल्ड्रन, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3. द क्वेश्चन नंबर 3 इज,
ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन्स द साउंड श in the beginning or in the middle or at the end. First speak out all words clearly, then arrange the words in 3 groups in the table. प्यारे बच्चों, आपको भी यहाँ पे वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। इन शब्दों में जो है श की साउंड कहीं पे शुरू में आ रही है, कहीं पे मिडल में आ रही है यानी मध्य में आ रही है, और कहीं पे अंत में आ रही है। तो हमें इन्हें बोलकर पहचानना है कि किस शब्द में श की साउंड शुरू में या अंत में या मध्य में आ रही है, और उसको पहचान कर हमें नीचे जो है इनिशियल, मीडियल और फाइनल के नीचे लिखना है। इनिशियल मतलब अगर शुरू में आ रही है श की साउंड तो हम इनिशियल के नीचे लिखेंगे, अगर मिडल में आ रही है तो हम मीडियल के नीचे लिखेंगे, और अगर अंत में आ रही है श की साउंड तो हम फाइनल के नीचे लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट। शीप, इसमें कहाँ आ रही है? शुरू में आ रही है, तो इस शब्द को हम कहाँ लिखेंगे? इनिशियल के नीचे। सिमिलरली ट्रैश, इसमें श की जो साउंड है वो अंत में आ रही है, तो यह शब्द कहाँ जाएगा? फाइनल के नीचे। माश, इसमें भी अंत में आ रही है श की साउंड, तो यह भी फाइनल के नीचे हम लिखेंगे। इसी प्रकार फैशन, बच्चों इसमें आप देख रहे होंगे श की साउंड जो है मध्य में आ रही है, तो इसको हम किसके नीचे लिखेंगे? मीडियल के नीचे। एंग्शियस, इसमें भी श की साउंड मिडल में आ रही है। श्रिक, इसमें श की साउंड शुरू में आ रही है। सिमिलरली शोर, शोर में भी श की जो साउंड है वो शुरू में आ रही है। फिश, बच्चों फिश में जो है श की जो साउंड है वह अंत में आ रही है, तो यह फाइनल के नीचे जाएगा। पोशन, पोशन में किस में आ रही है? मध्य में, तो यह मीडियल के नीचे लिखेंगे। एशेज, एशेज में भी मिडल में आ रही है, तो मीडियल के नीचे लिखेंगे। शेर, शेर में किस में आ रही है? शुरू में ही श की साउंड आ गई, तो इसे हम किसके नीचे लिखेंगे? इनिशियल के नीचे। नेशन, नेशन मीडियल के नीचे जाएगा। शू, शू किस में आएगा? इनिशियल के नीचे आएगा, क्योंकि इसमें श की साउंड शुरू में ही आ रही है। पुशिंग, पुशिंग मीडियल के नीचे लिखेंगे। पॉलिश, पॉलिश में बच्चों देखो श की जो साउंड है वो जो है अंत में आ रही है, तो यह फाइनल के नीचे लिखेंगे। मुस्टैश, मुस्टैश में किस में आ रही है बच्चों साउंड? लास्ट में आ रही है, तो यह किसके नीचे जाएगा? फाइनल के नीचे जाएगा। सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ let's go to question number 4. The question number 4 is, in each of the following words, chaw represents the same consonant sound as in chair. Underline the letters representing this sound in each of the following words. बच्चों आपके सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें जिस तरह चेयर में ch की साउंड चौ से आती है, इसी प्रकार इन शब्दों में भी जो है चौ की साउंड आ रही है। किन्हीं कॉन्सोनेंटों से हमें उन्हें पहचानना है और उन्हें अंकित करना है। तो आओ इसको हल करें। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट वर्ड इज फीचर। बच्चों फीचर में जो है चौ की आवाज़ कौन से कॉन्सोनेंट वर्ड दे रहे हैं? टी एंड यू। तो हमें इसे जो है अंकित करना है और इस तरह लिखना है, जैसे मैंने इसमें रेड से मार्क किया है। तो फीचर में जो है जो टी यू है वो चौ की साउंड दे रहा है। इसी प्रकार आर्चरी, आर्चरी में चौ की साउंड कौन कॉन्सोनेंट दे रहे हैं? सी एच। तो यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे इसको। सिमिलरली पिक्चर, पिक्चर में चौ की साउंड कौन दे रहा है? टी एंड यू। सिमिलरली रीचिंग, रीचिंग में चौ की साउंड किससे आ रही है? सी एच से। हम इसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, सर्कल भी कर सकते हैं, या स्पेशल मार्क जैसे मैंने रेड से इसको मार्क किया है वैसे भी हम कर सकते हैं। नाउ नेचर, नेचर में टी यू से आ रही है चौ की साउंड। मैचेस, मैचेस में सी एच में आ रही है चौ की साउंड। रिचेज, रिचेज में सी एच में आ रही है चौ की साउंड। सिमिलरली बैच, बैच में चौ की साउंड सी एच से आ रही है। एंड द लास्ट वर्ड इज चर्च। बच्चों इसमें आप देख रहे होंगे शुरू में भी और अंत में भी चौ की साउंड आ रही है सी एच से। तो यहाँ पे हमें दोनों को ही अंकित करना होगा, जैसे मैंने किया है
CH को, दोनों को ही हमने इसमें अंकित किया है. So dear children, these are the answers of the exercise, that is working with language. I hope that you understand these answers. Children, there is a worksheet along with this video. Kindly solve the questions given in the worksheet so that you can make more understanding about this exercise as well as the grammar portion. Thank you. Be happy and safe.